کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اور جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب مسجد سے خارج ہوں گے، باہر نکلیں گے تو اعتکاف نفل جو ہے ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی تو اب کر لیں، افطار کا وقت آ گیا افطار کر لیں۔ تاہم یہ کہ مناسب یہ ہے کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کر لیں، کچھ درود شریف پڑھ لیں، ذکر کر لیں، تلاوت ہو سکے تو کر لیں، کم از کم 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب افطار کر لیں۔ یہ نیت و ثواب کے لیے، اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں گے تو ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے پھر اس میں نہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں نہ اس کے نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ مجلس یعنی وہ بیٹھک یا وہ گیدرنگ ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کپڑے فولڈ کر کر نماز پڑھنا کیسا؟ اور امیر اہل سنت، جو کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن روزانہ کم از کم 70 مرتبہ استغفار پڑھ لے، ان کے لیے کیا دعائیں ہیں آپ کی؟ کپڑے نماز میں فولڈ کر کے پڑھنا، جیسے کہ پائنچے اڑستے وہ فولڈ کرتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات آگے سے پاجامہ وغیرہ وہ فولڈ کرتے ہیں، اس کو نماز میں اس طرح نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ ہے۔ پہلے سے سلائی میں اسی طرح اونچے ہوں ٹخنے سے، پاجامے یا پائنچے یا پینٹ کا پائنچا۔ اب اگر نہیں ہے اونچا تو جس طرح اس طرح چھوڑ دیں، فولڈ کرنا زیادہ سخت ہو گیا۔ اگر ویسے ہی پائنچے نیچے تھے تو نماز مکروہ تنزیہ تھی، ناپسندیدہ تھا ایسا کرنا، جبکہ تکبر سے نہ ہو۔ تکبر سے تو پھر مکروہ تحریمی، پائنچے نیچے ہونا بھی ٹخنے سے۔ تو عام طور پہ تکبر نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہوتا، بس لوگ اس طرح سلواتے ہیں، یہ بھی نہیں ٹھیک۔ سنت یہی ہے کہ اونچے ہونے چاہیے ٹخنوں سے۔ اور 70 بار استغفار، تو یہ اس کی فضیلت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 70 بار استغفار کی روایت بھی ہے، 100 بار روزانہ استغفار کی بھی روایت ہے۔ یہ حدیث پاک کی خود دعا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
جی زاہد عرفان اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. تھوڑی سی یہ اصلاح کر دیجیے گا کہ قضا نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ سب کا کوئی طریقہ کار بتا دیں تاکہ جو نماز قضا ہو گئی ہیں وہ بندہ اپنی پڑھ لے. اگر یہ پتہ ہے کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، مثلا ایک دن کی قضا ہوئی ہیں، پھر تو یہ کہ فجر قضا کر لی، ظہر کر لی، عصر کر لی، مغرب کر لی، عشاء کر لی، اب 5 نمازیں قضا ہیں کسی پر، تب تو یہ کہ وہ جس وقت کی نماز پڑھنے لگا ہے، مثلا ایک دن کی پوری نکل گئی، اب دوسرے دن یہ فجر پڑھنے لگا ہے، اس سے پہلے یہ 5 نمازیں اس کو قضا کرنی ہے، اس کے بعد یہ فجر پڑھے. ہاں اگر یہ 5 نمازیں قضا کرتا ہے، فجر کا وقت نکل جائے گا تو اب یہ فجر پڑھ لے، اس کے بعد یہ قضائیں کرے. تو یہ تو ان نمازوں کا جن کی گنتی پتہ ہے. 5 سے زیادہ ہے تو پھر وہ صاحب ترتیب نہ رہی ہے اصطلاح شریعت کی، تو اب وہ صاحب ترتیب نہ رہا، تو اب یہ کہ جو نماز وقت کی پڑھ رہا ہے وہ بھی پڑھتا رہے اور قضائیں بھی پڑھتا رہے. تو قضا عمری ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی نمازیں چھوٹی ہیں. مثلا کوئی سال بھر کی کسی کی چھوٹی ہے یا 100 نمازیں سمجھو چھوٹی ہیں، تو اب یہ کہ 5 نمازیں کی، جیسے بعض لوگ پڑھتے ہی نہیں نماز، تو وہ اس طرح حساب لگائے گا، اب حساب بھی پتہ نہیں ہے تو کہ کب سے نماز نہیں پڑھتا یا شروع سے پڑھتا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کہ بالغ ہونے سے نماز فرض ہوتی ہے، اب بالغ کب ہوا یہ بھی نہیں پتا، تو پھر احتیاط اسی میں کہ 12 سال کی عمر سے لڑکا، 12 اور 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے اسلامی حساب سے، انگریزی حساب سے نہیں. تو اسی طرح لڑکی 9 اور 15 کے درمیان بالغہ ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں کب بالغ ہوئے. تو اب یہ کہ لڑکی 9 سال سے حساب لگائے گی نمازوں کا، اور لڑکا 12 سال سے مرد لگائے. اور اب یہ کہ جو بھی نمازیں جتنی بھی بنتی ہیں، 100 بنتی ہیں، 50 بنتی ہیں، 500 بنتی ہے، 1500 بنتی ہے، سارا ہی ہے کہ اتنے دن کے میں نے نہیں پڑھی. تو نیت کرتے ہوئے یہ کہ سب سے پہلے جو میری قضا ہوئی تھی، ماں بھی یہ اس میں اختیار ہے کہ فجریں پڑھ لے پہلے، پھر ظہریں پڑھے، پھر عصریں پڑھے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 5 نمازوں کا حساب رکھے. یہ جو عوام میں کہ ہر نماز میں ایک نماز قضا کر لی جائے، 5 ٹائم روزانہ ایک نماز، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. نمازیں قضا کرنا جتنا جلدی ہو قضا کرنی ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، یہ خیال رکھیے گا. تو اب یہ کہ پہلے ظہریں پڑھ لی، فجریں پڑھ لی، ظہر پڑھ لی، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو میری سب سے پہلے جو قضا ہوئی میں وہ پڑھتا ہوں، یوں کر کے فجر کی نیت کی، پھر دوبارہ دوسری فجر پڑھنے کے لیے کہ سب سے پہلے جو میری قضا ہوئی، تو جو یہ باقیوں میں سب سے پچھلی قضا ہوئی، اس طرح مطلب یہ نیت کرتا رہے، پڑھتا رہے. فجر پورے ہو گئے، ظہر پورے ہو گئے، عصر، عشاء کے فرض اور وتر، یہ دونوں قضا کرنے. وہ اس طرح مطلب یہ کہ قضا کر کے اپنی جلدی جلدی آدمی پوری کر لے. اچھا، اب قضا عمری میں تھوڑی سی فیسلٹی بھی ہے، رعایت. وہ یہ کہ رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ جو پڑھے جاتے ہیں، تو 3 کے بجائے ایک بھی پڑھ سکتے ہیں. اور سورہ فاتحہ تیسری اور چوتھی رکعت جو فرض کی ہے، اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنا چاہے تو 3 بار سبحان اللہ پڑھ لے. قاعدہ اخیرہ جب سلام پھیرنے سے پہلے جو قاعدہ ہے، اس میں التحیاتوں کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ، اتنا درشی پڑھ کر بھی سلام پھیر سکتے ہیں. یہ تھوڑا رعایت. اسی طرح دعائے قنوت میں رعایت، کہ دعائے قنوت کی جگہ تیسری رکعت میں تکبیر ہے، قنوت کہنے کے بعد اللہم اغفر لی کہہ لے، رکوع کر لے. ویسے دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا بھی مستحب ہے، یہ ہمیشہ کے لیے جب بھی نماز پڑھیں دعائے قنوت کے بعد درود شریف یہ پڑھنا مستحب ہے. عام طور پر لوگوں کو توجہ شاید نہ ہوتی ہو اس پر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور یہ قضا نماز کا طریقہ جو ہے
ये नमाज के अहकाम मकतबतुल मदीना किताब है, इसमें एक रिसाला है क़ज़ा नमाज का तरीका, उसमें यह तरीका मज़ीद तफसीलात के साथ आप देख सकेंगे, और भी इसके मसाइल हैं। अमीरुल सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि अगर कोई इस तरह कज़ा करना चाहता है कि फ़जर के साथ एक फ़जर पढ़ ली, ज़ोहर के साथ एक ज़ोहर पढ़ ली, असर के साथ एक असर, मगरिब के साथ मगरिब की कज़ा और इशा के साथ फ़र्ज़ और वितर की कज़ा, और वो इतनी ही रोज़ाना आम तौर पे कज़ा करता है, यानी इसका जो मामूल है कि वो 5 से 6 कज़ा नमाज़ें अदा करता है, तो क्या इस अंदाज़ में वो अदा कर सकता है? इस अंदाज में तो कर सकता है, वो एक एक पढ़ते हैं, तो बाद लोगों को देखा है कि वो एहतियातन पढ़ते हैं कि शायद कभी कज़ा हो गई हो, तो फजर में फजर की जोर में, इसे देखे मैंने, तो इसलिए मैंने बताया कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है कि एक एक करके मतलब बरसों तक कज़ा करता रहे, और कज़ा हैं इस पर पढ़ना जल्दी जल्दी है। अब हर नमाज में थोड़ी थोड़ी मखसूस कर ली कि हर रोज़ फजर में 10-10 फजरें पढ़ूंगा, ज़ोहर में 10-10 ज़ोहर पढ़ूंगा, क्योंकि ये कज़ा है ना, ये हम जितनी जल्दी इससे फारिग हो जाएं मुमकिन हो। तो यहाँ तक है कि जैसे कि काम धंधा ज़रूरी जो काम काज हैं, इनसे फारिग होकर जितना भी वक्त मिले वो कज़ा नमाज पढ़ता रहे, ताकि जल्दी कर्जा इसका जो इसके ऊपर है फ़र्ज ये उतर जाए। जिंदगी का भरोसा भी तो नहीं है ना, तो बिला वजह इसमें देर करना ये भी गुनाह है, जल्दी जल्दी पढ़नी है, और ये वाजिब है कि जल्दी जल्दी कर ये कज़ाएं मुकम्मल करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। गुस्ल के ताल्लुक़ से कुछ सवालात हैं, अवामी गलत फहमियाँ भी इसमें शामिल हैं। क्या जुमा के रोज़ नहाना ज़रूरी है? मुस्तहब है, नहीं नहाया तो गुनाह नहीं है, लेकिन फ़ज़ाइल बहुत है इसके, नहाना चाहिए। क्या गुस्ल में कुल्ली करना और नाक में पानी डालना ज़रूरी है? डाला नहीं जाता, नाक में पानी चढ़ाना होता है नरम हड्डी तक, तो ये गुस्ल में फ़र्ज है, वज़ू में सुन्नत मुअक्कदा है। और कुल्ली भी पूरे मुंह के हर कल पुर्जे में पानी पहुंच जाए, दांतों की खिड़कियों में, सुराखों में गैप होते हैं, सब जगह ज़बान की करवटों, ज़बान के नीचे सब जगह पानी पहुंच जाए हल्की जड़ तक, ये गुस्ल में फ़र्ज है, वज़ू में सुन्नत मुअक्कदा है। जब आप कहते हैं गुस्ल में फ़र्ज़ है, तो ये आम गुस्ल में फ़र्ज़ है या जब फ़र्ज़ गुस्ल किया जाए तब फ़र्ज़ है? जब भी गुस्ल करे, तो ज़ाहिर है कि जब एक सुन्नत गुस्ल करेंगे, मुस्ताहब गुस्ल करेंगे, तो उसका भी फ़र्ज़ अगर छूट गया तो गुस्ल का सवाब तो ना मिला ना, और फ़र्ज़ में तो है ही फ़र्ज़ के गुस्ल उतरेगा नहीं। अगर उमूमी तौर पर जैसे कि सिर्फ ठंडक के लिए या फ्रेश होने के लिए गुस्ल करना चाहता है, तो क्या तब भी नाक में पानी चढ़ाना फ़र्ज़ हो जाएगा और हर मतलब कि कल पुर्जे तक कुल्ली करना फ़र्ज़ हो जाएगा? तो गुस्ल उसी वक्त कहा जाएगा कि जब उसी तरीके से जो तरीका बयान किया, वो अब खाली बदन में पानी डाल रहा है, तो ये फिर गुस्ल नहीं है, जबकि ठंडक के लिए, गर्मी दूर करने के लिए, तो तबरीद गालिबन इसको कहते हैं, तबरीद के लिए, ठंडक के लिए, तो ये भी जायज़ है, मुबाह है, अच्छी नीयत हो तो सवाब मिलेगा। क्या शावर के ज़रिए नहाने से फ़र्ज़ गुस्ल हो जाएगा? वही कुल्लियाँ और नाक में पानी चढ़ा ले, जो चढ़ाने का प्रॉपर तरीका है, बाकी सारे बदन पर जो आज़ा जो पार्ट्स गुस्ल में धोने फ़र्ज हैं, तो वो अगर धुल गए तो 2-2 कतरे कम से कम बह गए हर जगह से, तो गुस्ल तो फ़र्ज उतर जाएगा। बाज़ जगह ऐसी होती है बदन में कि जिनकी एहतियात न की जाए तो उससे पानी बहता नहीं है, तो वो ऊंचा नीचा होकर वो पानी बहाना पड़ेगा। इसके लिए मैं मशवरा दूंगा कि जो शावर में नहाते हैं, क्योंकि आजकल जो भी शावर बाथरूम में लग रहे हैं वो एक छत के शावर लगते हैं और भी वो फिक्स शावर होते हैं। अगर उसके साथ साथ आप हैंड शावर ज़रूर लाजमी तौर पर लगा दें, क्योंकि बाज़ जगहों पर पानी हैंड शावर हाथ में लेकर पानी पहुंचाने में आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। सिर्फ नीचे खड़े रहकर पानी ऊपर से आए तो खदशा है कि शायद उस जगह पर पानी ना बहे जहाँ पर पानी बहाना भी ज़रूरी है। मगर अगर हैंड शावर आपके हाथ में होगा तो आप अपने हैंड शावर के ज़रिए वहाँ पानी पहुँचा सकेंगे जहाँ पहुँचाने की
हाजत व ज़रूरत या फ़र्ज़ और लाजिम है? तो बदन को मलना भी सुन्नत है जी। सुन्नत है। हर जगह को मलना है, और अगर यूं पानी बहता रहा और यूं खड़ा रहा तो बिल्कुल यानी कि कभी इम्कान है कि कुछ जगह सूखी रह जाएगी, चाहे पानी बहता रहेगा। हिलना जुलना, ऊंचे नीचे जो चीज़ें ढलकी भी होती हैं इनको उठा कर इनके नीचे पानी बहाना पड़ेगा। क्या गुस्ल करते हुए कान के अंदर पानी डालना भी ज़रूरी है? कान की जो बाहर की सतह है ना ये धुलनी है, अंदर सुराख में पानी तो नुकसान करेगा डालेंगे तो। बाहर की सतह पर पानी बह जाए, आप बह जाए, गुस्ल में यूं यूं करते हैं ना तो मतलब पानी का चांस तो है कि बह जाए। बाज औकात है कि मेल जमे हुए होते हैं ये कान की इधर, मेल इतना सख्त होता है कि शायद पानी ना बहे। ये मेल को उंगली से साफ किया जाए। ये ऊपर के ही सतह में होता है, ये इस हिस्से में ये जो ये भी थोड़ा थोड़ा फोल्ड होते हैं, कान तो यहाँ भी थोड़ा हिला जुला कर पानी, क्योंकि बाहर की सतह तो धुलना फर्ज है ना गुस्ल में। कान का ये जो अंदर के ये सारे जैसे हाँ, ये जो लकीरें जो जाती है है, ना, ये हाँ ये सब, इस सब के अंदर पानी बह जाना, हाँ ये, हाँ सुराख का मुंह, हाँ ये भी धुलना है। क्या 3 बार जिस्म पर पानी बहाना फर्ज है? एक बार से फर्ज अदा हो जाएगा, 3 बार सुन्नत है। अच्छा, अब ये शावर के नीचे नहाएंगे तो 3 बार का तो हिसाब नहीं रहेगा, वो कंधे और ये तरतीब है ये भी नहीं रहेगी। तो इसमें ये कि हर तरफ से पानी बस ऊपर से जैसे आ रहा है, अब इसमें पहले सीधा कंधा फिर बायां कंधा उल्टा कंधा, इसकी अब वो ज़रूरी नहीं है। तो पानी बह रहा है तो इतनी देर बहते पानी, ये बहता पानी में आएगा, इतनी देर बहते पानी में ये रहे जितनी देर में 3 बार धुल जाता है, तो ये सुन्नत अदा हो जाएगी। तसलीस सुन्नत की 3 बार होने की। अगर वो एहतियात करनी है कि हर जगह पानी बहे, कुल्लियाँ नाक के अंदर पानी चढ़ाना, ये अपनी जगह बाकी है कि शावर के दिन से रात पूरा भी खड़ा रहेगा तो नाक में पानी हड्डी तक कैसे जाएगा, कुल्लियों में कैसे, वो ये देखना है, खास ख्याल रखना है। फिर वही बात जगहों का ख्याल रखना है कि तिरछा होके तो जहाँ जहाँ मिली हुई जगह बदन की वो हर जगह धुलना है। हाथ में नेल पॉलिश लगी हो, क्या गुस्ल हो जाएगा? नाखूनों में नेल पॉलिश अगर गुस्ल से पहले लगाई हुई है और अब गुस्ल किया तो गुस्ल तो नहीं होगा, क्योंकि इसकी तेज जम जाती है नाखूनों पर। यह भी मुसीबत आम है औरतों में नेल पॉलिश की। गैर ज़रूरी बाल काटने से क्या गुस्ल वाजिब हो जाता है? गैर जरूरी बाल काटने से क्या गुस्ल वाजिब नहीं, हो नहीं, जाता है? इससे गुस्ल फर्ज नहीं होता। नहाने के बाद क्या नमाज के लिए वुजू करना ज़रूरी है? नहा लिया और सही मानों में गुस्ल कर लिया जिसमें वजू शामिल है, तो अब वजू हो चुका है, तो फिर अब दोबारा वजू की जरूरत नहीं। कपड़े बदलने से या किसी का नंगा सित्र देखने से वजू नहीं टूटता। दांतों में अगर दाने वगैरह फंसे हों, क्या इस सूरत पे गुस्ल हो जाएगा? दांतों में अगर दाने वगैरह या कोई चीज़ ऐसी फंसी हुई हो, उमून बोटी के जर्रात फंसे हुए होते हैं, जी जी, या तो सुपारी गुस्ल खाते फर्ज हैं, होने से पहले कहेंगे तो इसको निकालना जरूरी है, फर्ज है। तो हर मुमकिन सूरत में इसको निकालना होगा, चाहे टूथपिक से, चाहे मिसवाक से, चाहे देर तक मुंह में कुल्ली पानी को जुम्बिशें हरकतें देने से निकल सकता है, तो ये करना पड़ेगा। आमतौर पर इसकी तरफ भी तवज्जो नहीं है। वजू में सुन्नत है मुअक्कदा है कि हर जगह पानी फिर जाए, लेकिन टूथपिक करने का भी जहन नहीं है दांतों से, फिर बदबूएं आ ही रही होती है मुंह से। ये बताइए कि क्या गुस्ल बैठ के करना चाहिए खड़े होकर? बैठकर सुन्नत है, हाँ गलिबन सुन्नत है बैठकर, और सित्र भी छुपा हुआ हो। या बगैर साबुन शैम्पू के गुस्ल हो जाएगा? नहीं, हाँ बिल्कुल, इसकी शर्त नहीं है साबुन शैम्पू तो बताते हैं नुकसानदेह। एक इस्ताई भाई है, शायद 50 साल उम्र हो गई होगी शायद, बाल काले ही हैं उसके, तो मेरे इस्ताई बता रहे थे मुझे कि इसको पूछा कि तेरे बाल क्यों काले हैं, एक भी सफ़ेद? तो बोला मैंने कभी शैम्पू इस्तेमाल नहीं किया है। शैम्पू केमिकल है। क्या हर शैम्पू नाकिस होता है? अब तजर्बा नहीं है शैम्पू से, ये शैम्पू साबुन भी क्या है, ये केमिकल होते हैं इसमें भी। पहले हम लोग छोटे थे ना तो अरीठ
हम आरीठा बोलते थे मेमनी में, हमारे यहाँ क्या वो अरीठ को एक दो को गर्म पानी से वो इसको कर लेते थे, तो इससे इतनी झाग और कुदरती खुशबू, उससे अनीट से फिर इसमें वो नारियल का छिलका जो होता है वो डालकर इस तरह हमको अम्मी नहलाती थी, हमारी आंखें जलती थी, रोते थे, और ये बचपन के कुछ यादें हैं। तो इस तरह मतलब ये कि बेहतरीन बालों को मजबूत करे, बालों को गिरने से रोके, और उसके फवाइद जड़ी बूटी है ना। और अब ये फिर आहिस्ता आहिस्ता अब तो लोग भूल ही गए रीठ को, तो ये कुदरती बूटी अभी दमाव में डलती है। ये कहीं धोते नहाते हो, इससे तो अल्लाह बेहतर जाने। अब साबुन आ गया, आसानी हो गई। साबुन में क्या मतलब कास्टिक सोडा और अला बला डालते हैं, खूब झाग। हालांकि झाग गालिबन कुछ नहीं है, झाग नफ्सियाती असर है। उसके लिए तो वो जो पेस्ट पे तो मैंने पढ़ा था उसके नुस्खे में, झाग डालने का जो कुछ डालते हैं ना, इससे दांतों का मेल थोड़ी उतरता है, खाली इतना तो आदमी को यूँ नफ्सियाती असर। असली तो और चीज़ होती जो काम करे, तो शायद हो सके साबुन में भी ऐसा हो। सही तहकीक नहीं है मेरी। तो बहरहाल ये कि ये साबुन जो है ये नुकसानदेह है। साबुन समझो, ये बाल झड़ साबुन होते हैं, बास तो बाल झड़ाते हैं, तेज होते हैं, केमिकल होते हैं, मतलब मेल उतारते हैं, काम हो जाता है। अब इसके बगैर अब गुजारा ही नहीं है। तो बाल झड़ने की अक्सर लोग शिकायत करते हैं, तो एक तो ये तरह तरह के साबुन ये खतरनाक होते हैं, बालों को कमज़ोर करते हैं। दूसरी बात ग़िज़ाओं में भी अब फिर लोग और अबाउट टर्न कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं, कुदरती। क्योंकि अब ये तरह तरह की खाद डालकर ये जो मोटे मोटे हो जाते हैं ना, यार हर चीज़, बेर इतने इतने, मैंने पहले हम होते छोटे तो बेर भी छोटे होते थे, चनिया बेर होते थे लाल लाल, दूसरे बेर पे टबा बेर निकले शायद, तो वो थोड़े बड़े हुए पीले पीले। अच्छा, फिर तो इतने बड़े बड़े, अब तो इतने बड़े बड़े बेर आ रहे हैं। ये और चीज़ें, तरबूज, आप हैरान हो जाएंगे, मैंने इतने बड़े बड़े तरबूज देखे बाहर मुल्कों में। ये तो ये क्या सब आर्टिफिशियल खाद के करिश्मे हैं। जो फल देखो, जो सब्जी देखो, मोटियां मोटियां हो रही है ना। तो ये मतलब आम देखो कितने मोटे मोटे आम होते हैं। वो अपने ये आर्टिफिशियल खाद का ये कमाल होता है। ओरिजिनल इतने खूबसूरत नहीं होते, ऑर्गेनिक जो होते हैं छोटी साइज के होते हैं। अब और हमारे ऑर्गेनिक भी केक कर भी टिका देंगे अपने आर्टिफिशियल, या क्या बोलते हैं, फार्मी, बकरे फार्मी, मुर्गियां फार्मी, गाय फार्मी, हर चीज़ अब फार्मी है। मछलियां फार्मी, मछलियां भी पालते हैं, झींगे भी ज़रा पालते ही होंगे, तो ये हर चीज़ पाल रहे हैं। और तो ये इनमें फीड देते हैं मुर्गियां, अब देसी मुर्गियां का देसी बोलकर भी फार्मी टिका देते हैं। अंडे कहाँ मिलते हैं देसी के, तो जो घरों में पालते हैं वहाँ को घूमे फिर अंडे ले तो ले घरों से निकाल के कोई देसी खालिश मिल जाए। मुर्गी वो अच्छी कि जो देसी और चरे, अब देसियां भी पाली जा रही हैं, देसी मुर्गियां भी, तो वो खूबी नहीं है। वो तो पिंजरों में रहती हैं, चरती नहीं है। जानवर बकरियां ये वो जो चरती है ना, इनका गोश्त ज्यादा मुफीद, सब फार्मी है। कुर्बानी में फार्मी जानवर, चर्बियों के थर होते हैं। अनाज, ये गेहूं, आटा, चावल, जिसको जो हर चीज फार्मी है। ऑर्गेनिक, ये ओरिजिनल सही जो खाद होती है ना कुदरती, इससे ये लोग करते ही हैं। ये महंगा मिलता है, मगर ये भी मैंने कहा इस पे भी धोखा चलता होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बारिश में नहाने से क्या गुस्ल हो जाएगा? जी हाँ, अगर कुल्लियाँ नाक में पानी चढ़ा ली और पूरे बदन पर जिस तरह पानी बहना चाहिए वो बह गया, कम से कम 2 कतरे ही बह गए, तो गुस्ल का फर्ज तो उतर जाएगा। हर जगह वही एहतियात के साथ पानी बहना चाहिए बारिश का भी। और वज़ू के लिए भी अगर आज़ाए वज़ू पर पानी बह जाता है, नाक में पानी चढ़ा ले, कुल्लियाँ कर ले। खैर अगर किसी ने नाक में पानी नहीं चढ़ाया, कुल्लियाँ नहीं की, वज़ू तो हो जाता है, लेकिन सुन्नत मुक्कदा है ये कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाना। क्या छिपकली वगैरह मारने से गुस्ल करना लाजिम हो जाता है? नहीं। क्या नहाते वक्त किबले की जानिब चेहरा या कमर की जा सकती है? अगर सित्र खुला हुआ है
तब तो बेहतर ये कि किबले की तरफ मुंह या पीठ ना करे नहाते वक्त, और इस्तिंजा खाने में तो किबले की तरफ मुंह या पीठ करना इस्तिंजा करते वक्त ये तो हराम है। क्या औरत अपने मखसूस अय्याम में भी नहा सकती है? और नहाने में क्या अगर जरूरत है, ठंडक के लिए, गर्मी हो रही है तो नहा सकती है, सफाई के लिए नहा सकती है। कुछ इस्लामी भाई दौरान मदनी मुज़ाकरा या गौस पाक, ये भाई मदीना खजूरें बांटने वाले क्या यार, ये कुछ जो भी इस्लामी भाई नहीं ये ऐसा नहीं तो वास्तव रिसाले बांटते हैं या खजूरें बांटते हैं या पानी बांटते हैं, तो ये इनमें दीन सीखने का और इसमें गलतफहमी होने का अंदेशा आप रहता भी है। नहीं मान रहे यार, इनको तो आप लोग समझाएं यार कि जो सुन रहे हैं दीन सीख रहे हैं, ये शरण भी मतलब इस तरह दुरुस्त नहीं रहेगा, इनकी तवज्जो बढ़ जाएगी। ये ना बांटा करें फिर। और खजूर खाने से मैंने जो अर्ज किया ना, खजूर से रोजा इफ्तार करना सुन्नत है, लेकिन खजूर में मिठास रह जाएगी मुंह में, दांतों में इसके हिस्से रह जाते हैं, तो मुंह साफ करना फिर सुन्नत है, वरना तो इसीलिए मैं अब खजूर की सुन्नत ज़्यादा इस तरह कर रहा हूँ कि खजूर को थोड़ा यूँ चूस लेता हूँ और थोड़ी सी इसके हिस्सा लेकर यूँ करके मैं पानी से निगल लेता हूँ उसको। मैं चबाने जाऊँगा तो मुझे पता है कि मेरे दांतों में भर जाती है, अब मैं जाऊँगा निकालूंगा मुंह साफ करूँगा तब तो मेरी जमात में निकल जाएगी। तो यूँ अगर अब इतनी एहतियात करे कौन है, मतलब पता नहीं है लोगों को, तो अगर इतनी एहतियात कर सकते हैं तो खजूर भले अपनी जगह पर बैठे बैठे कोई इफ्तार करे, वरना फिर पानी से भी तो हदीस पाक से साबित है ना, पानी पाक करने वाला ये अल्फाज भी है, तो पानी से इफ्तार करने में ज़्यादा आफियत है कि ये दांतों में भरेगा नहीं, कुछ हुआ तो भी लेता जाए शायद। तो ये खजूर मेहरबानी करके हम खजूर इनको मतलब हम खजूर क्या हर चीज़ खिला सकते हैं, आपके नाम पर लोग देते हैं, मोतकिफीन है देख लोगे इफ्तार कराओ हम आपको पाइनएप्पल खिला देंगे, एक बात है लोग दे देंगे, जो बोलेंगे इंशाल्लाह लोग देंगे। हम आप मतलब आपकी सुन्नतें और बाकी रहे, दांतों में कोई चीज़ भरे नहीं, बिरयानी खिलाते हैं ना हर इफ्तार में, अच्छा खिलाते हैं आपको, 1 रुपया तो आपसे लेते नहीं है, अपने जेब से भी हम थोड़ी देते हैं, लोग देते हैं, अल्लाह के बंदे पड़े हुए हैं, वो पता नहीं कितने करोड़ रुपए एहतिकाफ में खर्चा होता है। सिर्फ यहाँ जो हमारे फैज़ान मदीना में पूरे माह रमज़ान में तो सहरी इफ्तार पर जो कमोबेश जो अखराजात हैं वो सारे 8 से 9 करोड़ रुपए के अखराजात हैं, बल्कि इससे भी शायद पूरे माह के साढ़े 8 से 9 करोड़ रुपए, एक एवरेज के हिसाब से अर्ज कर रहा हूँ मैं। इसमें खजूरें क्या मुश्किल है खिलाना, लेकिन वही बात है कि मुंह में भर जाती है। तो ये बांटने वाले अगर एहसान फरमाए कि इनको पानी से कर देते इफ्तार, तो खजूर तो ये भी खरीद सकते हैं, ज़ाहिर है कि सब इतने भी तो कंगाल नहीं है, सारा साल को मांग के थोड़ी खाते हैं, तो अल्लाह की रहमत है, ये इबादत के लिए आए हुए हैं, तो लोग खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह इनको भी सिला दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरे 2 सवाल हैं कि असर के मदनी मुज़ाकरे में सजदा तिलावत के मुतालिक जो सवाल जवाब हुए, तो इसके बारे में मेरा पहला सवाल ये है कि अगर किसी शख्स पर एक से ज़ायद सजदा तिलावत थे और उसने इस तरह सजदे किए कि पहले पहला सजदा किया, फिर बैठ गया, फिर दूसरा किया, फिर बैठा, फिर तीसरा किया, तो इस तरह क्या उसका हो जाएगा? और दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स तिलावत कर रहा हो और कोई सामने मौजूद शख्स भी हो, तो अब दौरान तिलावत सजदा तिलावत की आयत आ जाती है, तो क्या वो इस नीयत से छोड़ सकता है कि अगर वो पढ़ेगा तो उस पर भी सजदा तिलावत लाजिम हो जाएगा, और ये गुमान रखता है कि वो सजदा नहीं करेगा, तो क्या इस नीयत से छोड़ा जा सकता है? रहनुमाई फरमा दें, बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ का मुल्तजी हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। एक तो बैठे बैठे सजदा, जी बेटे सजदे तिलावत तो ये हो सकता है बैठे बैठे, यानी इस तरह के एक सजदा किया फिर बैठ गया, दूसरा सजदा किया बैठ गया, वो जो तरीका गलत मुस्तहब है खड़े होकर करने का, तो अगर मुस्तहब तर्क किया तो गुनाह नहीं है, लेकिन नेकी है, हो सके तो ना छोड़े आदमी, इतना मुश्किल भी नहीं है खड़े खड़े सजदे में जाना एक नॉर्मल आदमी के लिए। अब मेरे ऐसा माजूर है, उसके बाद दूसरी है। और दूसरा हिस्सा सवाल का था एक, यानी खुद तिलावत कर रहा है, अब कोई बैठ सुन रहा है, करीब में आवाज जा रही है उसको, तो अब आयत सजदा छोड़ने की जरूरत नहीं है ना, वैसे भी जोर से पढ़ने की क्या जरूरत है जब दूसरे लोग बैठे हुए, तो
अगर लोग सुन नहीं रहे तो फिर तो ये कि अकेले ही पढ़ना है। अगर सुनने वाले मौजूद हैं तो भले मुनासिब आवाज से पढ़े, वो जो सुनने के लिए हाजिर हुए इनको सुनाने के लिए, वरना जो सारे बैठे बैठे पढ़ते हैं उसमें तो वैसे ही ज़रूरी है कि आहिस्ता पढ़े। सब जोर जोर से पढ़े तो गुनाह वाला तरीका है। हाँ, तलबा जो सबक याद कर रहे हैं और ये अपना रिपीट कर रहे हैं, तकरार कर रहे हैं, उनको इजाज़त होती है कि वो तिलावत नहीं कर रहे होते, सबक याद कर रहे होते हैं। बाकी जो आमतौर पर तिलावत करने वाले, इनको तो पढ़ना ही आहिस्ता होता है, इतनी आवाज़ हो खुद सुने, ये ज़रूरी है। इतनी आवाज़ से आयत पढ़ लेगा तो पढ़ना तो हुआ, उसको आवाज़ नहीं जाएगी। फिर उसके बारे में बदगुमानी करना कि सजदा नहीं करेगा, तो आप इस सजदा गुजार हैं, सज्जाद साजिद जो भी आप हैं, किसी को नहीं बनने देंगे। तो हम अपना काम करें, अब फिर भी उसको अम्र बिल मारूफ कर दें कि आप पर सजदा वाजिब हो गया, वरना किसको पता कि सजदा वाजिब हुआ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में।